और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं कोलकाता, जहां वित्त मंत्री अरुण जेटली मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। उत्तर के राज्यों में हमारा एक एंट्री पॉइंट बना और धीरे धीरे हमारी पार्टी उन राज्यों में जहां हमारे फुटप्रिंट्स कम थे वहां अपना वर्चस्व बना पाई है। वी हैव बीन एबल टू गेट प्राइमेसी after North India, in Western Indian states, in states like Karnataka. We are in a coalition government in Andhra, and now up to Bihar we are very strong, and now for the first time we have a historic win in Assam. Today, besides the central government where we have an absolute majority on our own, along with our partners and friends, we are in power in 15 states. And these 15 states cover almost 45% of India's population. Our principal opponent as a national party, the Congress party, is contracting. It's in power in 5 hill states and 1 Karnataka. And in some of these areas, elections are in near future. The situation is quite challenging. From this analysis, we as a party slowly but surely make our presence felt in a state. We expand our footprints. Initial years we have setbacks, and then we get an entry. इस बार जो केरल का चुनाव था हमारे लिए वो भी बहुत महत्व था। केरल में हमारी कार्डर स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन 2 पक्षों की लड़ाई बहुत वर्षों से चल रही है और उसमें तीसरे का स्थान मिल पाना बहुत कठिन होता है। केरल का ये चुनाव पहला कदम था, बड़ा कदम, जहां केरल की 2 पक्षों की लड़ाई अब 2 पक्षों की नहीं रही। It's a first major step we have taken to ensure that the future politics in Kerala will not be bipolar, but will be tripolar. और इसलिए केरल की सभी सीटों पे अपने सहयोगियों के साथ लड़ते हुए हमने पहली बार उन 2 पक्षों के बीच में जो तीसरा स्थान मिलना कठिन था उसमें 15% के करीब वोट अपना बनाने का प्रयास किया। One more jump and Kerala will really be in an era of tripolar politics. ये पश्चिम बंगाल में कैसे लागू होता है? How does this principle apply to West Bengal? We were relatively a small party always in West Bengal. We won 2 seats in the Lok Sabha. In the last assembly, we didn't get any seats. Thereafter, we won 1 by-election. इस बार हम सभी सीटें लड़े अपने साथियों के साथ और हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि हम पूरी स्टेट में, राज्य में अपनी मौजूदगी इस्टेब्लिश करें। We wanted to ensure our presence across the state. We got 10.82% votes. But what is important is, in 101 seats, we got more than 20,000 votes. In 190 seats, we got more than 10,000 votes. And therefore, in over 200 seats,
in the state assembly, we have for the first time registered a significant presence. Along with our ally, we won 6 seats. लेकिन हम अपनी मौजूदगी और प्रेजेंस 200 से अधिक सीटों पे एक अच्छी मात्रा में वोट लेकर इस्टेब्लिश कर पाएंगे। ये हमारी लॉन्ग टर्म रणनीति का, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। पश्चिम बंगाल में एक और परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन ये है कि लेफ्ट के खिलाफ आज भी एक बहुत बड़े वर्ग की बहुत मजबूत भावना है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एंटी लेफ्ट फीलिंग बिकॉज ऑफ व्हाट लेफ्ट डिड टू द स्टेट फॉर 34 इयर्स। और इसलिए 2011 और 2014 कोई एक्सीडेंटल वर्डिक्ट्स नहीं थे। 2016 ने ये साबित कर दिया कि ये भावना जो वामपंथियों के खिलाफ है, लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ है, वे बहुत गहरी है। There is a hat-trick of verdicts now against the left. We have no doubt in our mind that our primary object in the long run is to occupy that space in West Bengal which the left is vacating, and hence become the principal opposition to the present state government. और ये हमारी उस लॉन्ग टर्म रणनीति का हिस्सा था। हमारी सीमित मात्रा में सीटें आई हैं, अपने सहयोगियों के साथ 6 सीट आई हैं, 10.82% वोट है। लेकिन राज्य भर में हमारी मौजूदगी रजिस्टर हुई है। Our footprints have been registered all over the state. And therefore, in West Bengal and Kerala, which were conventionally the left bastions, with very little space for us, our strategy was common, that we must establish a reasonable amount of strength across the state, develop an organizational network, and therefore, both within the Legislative Assembly and outside, become the principal voice of the opposition. Because the space for left now in West Bengal is on a downward slide. Politics never accepts a vacuum, and therefore the space left open by the left, there is a historic opportunity for us to occupy that space. हमारी पार्टी ने चुनाव परिणाम के बाद ये एक लिस्ट बनाई है। राहुल जी उसके ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे। There have been 87 केसेस, 87 केसेस ऐसे हैं जहां हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ खूब हिंसा हुई है, और हम राज्य सरकार से अपेक्षा करते हैं कि अपने समर्थकों को वो रोके, उनको रेन इन करे और ये हिंसा का माहौल राज्य में समाप्त करे, जिससे कि राज्य शासन और प्रगति में आगे बढ़ पाएगा। मैं एक और विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि ये 2 वर्ष कल श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के पूरे हुए हैं,
और अगले 15 दिन पूरे देश भर में एक विकास पर्व मनाया जा रहा है। मैं भी यहां से लखनऊ जाऊंगा, आज वहां कार्यक्रम है। कोलकाता में कल कार्यक्रम होगा उसका। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों से सरकार चली है, पहली बार एक अच्छी, साफ सुथरी, ईमानदार सरकार जो निर्णय ले पाए, जो देश को प्रगति के रास्ते पर डाल पाए, और जिस सरकार ने गवर्नेंस की क्रेडिबिलिटी पुनः स्थापित की है। वी हैव रीएस्टैब्लिश्ड द क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, जो कि यूपीए के कार्यकाल में काफी धूमिल हुई थी। इसके संबंध में आपके प्रश्न होंगे जो विषय मैंने उठाए हैं, और ये जो हिंसा के वारदात हुई है इसके संबंध में जो विषय होंगे, राहुल जी पे ज्यादा जानकारी है और इसलिए वो जानकारी आपको वो देंगे। धन्यवाद। देखो, माननीय जेटली जी কাছে আপনারা যা কোশ্চেন থাকবে সেগুলো আপনারা করবেন। আমি শুধু 2 মিনিটে ওনার নির্দেশে আমি কয়েকটা কথা শুধু বলছি। ये सीधा प्रसारण आप कोलकाता के प्रेस क्लब से देख रहे थे, जहां वित्त मंत्री अरुण जेटली इस वक्त मीडिया को संबोधित कर रहे थे और खासतौर पर जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उस पर बात कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे देश में एक विस्तार हो रहा है उस पर वो खासतौर पर जोर दे रहे थे। वक्त है